Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you are doing great. In this video, I'm going to talk about future perfect continuous tense. आज हम future perfect continuous tense की फॉर्मेशन एंड इसके यूसेज को समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है. So let's start with today's topic. हम पहले इसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं कि ये टेंस कैसे बनता है. ओके, सो वी स्टार्ट विद द सब्जेक्ट. हम सब्जेक्ट पहले यूज करते हैं एंड देन सब्जेक्ट के बाद वी यूज हेल्पिंग वर्ब. इट्स हेल्पिंग वर्ब एंड इट्स हेल्पिंग वर्ब इज विल, हैव, बीन. नो मैटर कोई भी सब्जेक्ट हो, आई, वी, यू, ही, शी, इट, जे, अली, असलम, क्रिश्चियन, डेविड, कोई भी मतलब सब्जेक्ट हो सकता है, बट जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो सेम ही होगा विद एवरी subject. Okay, will have been. So I will have been, and then we use present participle. A present participle को हम fourth form of the verb या ing form of the verb भी कहते हैं, तो हम वो यूज करते हैं. So the sentence is I will have been studying, and then the object. फिर क्या आएगा? Object आएगा. अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है कि पहले आप क्या यूज करते हो? Subject. सब्जेक्ट के बाद इसका हेल्पिंग वर्ब एंड इट्स हेल्पिंग वर्ब इज विल, हैव, बीन, एंड देन यू यूज फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसको आप प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहा जाता है. ओके, सो दिस इज हाउ दिस सेंटेंस इज फॉर्म्ड. नाउ दिस इज द पॉजिटिव सेंटेंस. ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर है. अगर आप इसको नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करते हो तो क्या होगा? वी यूज नेगेटिव वर्ड नॉट. हम नॉट यूज करेंगे इन बिटवीन विल एंड हैव. will and have के बीच में not यूज करेंगे. So the sentence becomes they will not have been living. They will not have been living. Okay, and if you transform it into interrogative, अगर इसको आप सवालिया करते हो तो कैसे होगा? Auxiliary inversion. हम क्या करते हैं? मूव करते हैं जो है हेल्पिंग वर्ब को, उसको बिफोर रखते हैं सब्जेक्ट. ओके, इस सेंटेंस में कैसे होगा? जो विल होगा वो सब्जेक्ट से पहले यूज होगा, बाकी जो इसका जो रेस्ट पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब है वो हम सब्जेक्ट के बाद करते हैं. इट मींस विल जो है वो यूज होगा बिफोर द सब्जेक्ट. कैसे? विल, दे, हैव बीन, जो रेस्ट पार्ट है हेल्पिंग वर्ब का हैव बीन, ये सब्जेक्ट के बाद आएगा. सो द सेंटेंस बिकम्स विल, दे, हैव बीन वर्किंग, एंड देन द ऑब्जेक्ट. This is how this tense is formed. ऐसे ही हम इसकी फॉर्मेशन करते हैं. Now let's try to understand कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, हम कब यूज करते हैं. So remember we use we use future perfect continuous tense to talk about our actions that will be in progress at a specific point of time in the future. हम कौन से actions के बारे में यूज करते हैं? We use future perfect continuous tense to talk about our actions that will be in progress. ऐसे actions जो कि क्या होंगे? In progress, वो continue होंगे up to a certain point of time in the future. Future में किसी specific point of time तक. Yeah, you can say कि this tense is used to emphasize how long something has been going on by a particular point of time in the future. How long something has been going on means duration के बारे में आप बात करते हो कि कोई भी एक्शन वो कितनी ड्यूरेशन तक चलता रहता है up to a certain point of time in the future. Yeah, simply you can say कि we use these tense to talk about our ongoing actions. Our ongoing actions जो कि actions चलते रहते हैं, जो कि progress में होते हैं. ongoing actions क्या होंगे? that will जो है that will last for a specified time in the future. That will last for a specified time in the future. जो ongoing actions होंगे वो कब तक चलेंगे? किसी specific point of time तक future में. Okay, so let's try to understand it with examples. हम example से now it will be clear to you कि ये किस context में use होता है. So the first sentence is I will have been studying English for 3 years by the time I graduate. Now you see, I will have been studying English for 3 years. How long something has been going on? This मैंने आपको अभी बताया कि this tense is used to emphasize how long something has been going on. कब तक वो चलता है? ठीक है, duration.
तो हम यहाँ पे ये क्या है, फॉर 3 years इज द ड्यूरेशन, ये ड्यूरेशन है, मीन्स हाउ लॉन्ग। तो ये जो एक्शन है दैट कंटिन्यूज कब तक, फॉर 3 years, 3 सालों तक। एंड कब तक, बाय अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। अब ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ये स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक, इस पॉइंट ऑफ टाइम तक ये जो एक्शन होगा, ये दिस वुड बी एन ऑनगोइंग एक्शन। ये जो एक्शन होगा दिस वुड बी एन ऑनगोइंग एक्शन। कब तक, by this point of time, by this particular point of time तक। so इसका मतलब क्या होगा इन उर्दू, इसका मतलब कि आई विल हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ता रहूंगा फॉर 3 years, 3 सालों तक। मीन्स कब तक, बाय द टाइम आई ग्रेजुएट, जब तक मैं ग्रेजुएशन करता हूँ, मीन्स जब तक मैं ग्रेजुएट होऊंगा तब तक 3 सालों तक मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँगा या इंग्लिश सीख रहा हूँगा। तो इट मीन्स कि मैं सीख रहा हूँगा, इट जो है ये क्या बता रहा है कि ये जो एक्शन होगा दैट इज एन ऑनगोइंग एक्शन, ये चलता रहेगा फॉर 3 years, 3 सालों तक। और कब तक, मीन्स इस टाइम तक, जब तक मैं ग्रेजुएशन करता हूँ, ओके, तब तक, मीन्स 3 साल, 3 सालों से मैं जो है इंग्लिश सीखता रहूंगा। सो लेट्स जो है दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। So they will not have been living in this city for 5 years by next winter. अब next winter तक, 5 सालों तक वो इस शहर में नहीं रह रहे होंगे। Now you see, 5 सालों तक, अगले विंटर तक वो इस सिटी में नहीं रह रहे होंगे। अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ड्यूरेशन, मीन्स 5 सालों तक, एंड देन वी हैव द स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। ये स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर, यहाँ तक और इन सालों, इतने सालों तक वो इस सिटी में नहीं रह रहे होंगे। मीन्स वो 5 सालों तक, नेक्स्ट विंटर तक वो इस सिटी में नहीं रह रहे होंगे। Likewise, we have another sentence. Will they have been working on this project for 3 months by the end of the year? क्या वो साल की आखिर तक इस प्रोजेक्ट पे 3 माह से काम करते रहे होंगे? क्या वो साल की आखिर तक इस प्रोजेक्ट पे 3 माह से काम करते रहे होंगे? Now again you see, we have, this is the time duration. It means the time duration tells you कि this is an ongoing action. ये जो है दिस इज एन ऑनगोइंग एक्शन और ये कंटिन्यू होगा बाय द एंड ऑफ द ईयर, बाय द एंड ऑफ द ईयर। ये इतना टाइम लेगा, इतने टाइम तक, ये इतना टाइम कितने माह लेगा, फॉर 3 months, और कब तक, बाय द एंड ऑफ द ईयर। सो दिस इज हाउ वी यूज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम मजीद कुछ एग्जांपल्स को भी देख, रिमेंबर मैंने आपको अभी बताया कि जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है ये हम यूज करते हैं टू टॉक अबाउट अवर ऑनगोइंग एक्शंस, जो कि ऑनगोइंग एक्शंस होते हैं फ्यूचर में बाय अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। ओके, इट मींस कि हम दो चीजों को मेंशन करते हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम एंड दूसरा पीरियड ऑफ टाइम। अब जो पीरियड ऑफ टाइम है वो अंटिल द पॉइंट ऑफ टाइम तक कौन सा हमें पीरियड लगेगा तो उसको भी हम क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। सो लेट्स सी in the example में the sentence is on Saturday, it means कि this is a point of time, this is a particular point, ये क्या particular point है, in the future, on Saturday we will have been living in this house, means Saturday तक हम इस घर में रह रहे होंगे। कब, मतलब कितने अरसे से, for a year, एक साल से। अब एक साल से, this is the period of time, ये period of time है, this period of time is until this point of time, इस point तक, ठीक है, इस point तक इतना हमें ड्यूरेशन होगा और इतने ड्यूरेशन से हम रह रहे होंगे। मीन्स ऑन सैटरडे तक we will have been living in this house, हम इस घर में रहे होंगे for a year, एक साल से इस घर में हम रहे होंगे। कब, सैटरडे तक। ओके, सो वी हैव अनदर सेंटेंस, नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक। नेक्स्ट ईयर मींस अगले साल तक। अगेन वी हैव द पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर, दिस इज द पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। ओके, आई विल हैव बीन वर्किंग इन द कंपनी, मैं इस कंपनी में काम करता रहा हूँगा कितने अरसे से, फॉर 30 years, 3 सालों तक, 3 सालों से, 30 सालों से। मीन्स नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक
आई विल हैव बीन वर्किंग इन द कंपनी में, इस कंपनी में काम करता रहा हूँगा फॉर 30 years। अगले साल तक मुझे इस कंपनी में काम करते हुए कितने साल हो जाएंगे? 30 years हो जाएंगे। सो दैट इज एन ऑनगोइंग एक्शन एज वेल, दैट इज द पीरियड ऑफ टाइम, और ये पीरियड ऑफ टाइम कंटिन्यू होगा until this point of time, इस point of time। आई होप कि ये टेंस आपको समझ आ गया होगा कि ये टेंस, इस टेंस की फॉर्मेशन कैसे होती है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और कंफ्यूजन यू मे आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स में कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कांटेक्ट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये टेंसेस के हवाले से आज लास्ट लेक्चर था। वी आर डन विद 12 टेंसेस, जितने भी 12 टेंसेस हैं हमने वो कर लिए हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने जो है वो प्रैक्टिस करते हैं। जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आपको ये समझ आ जाएंगे। आई होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। Like and share the video and kindly subscribe to my YouTube channel. Thank you so much. Allah Hafiz.